فرما علماء اکرام اور ہمارے سامنے معزز برادران اسلام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور ہمارے طالبات اور طلباء اکرام، آج بڑی خوشی کی بات ہے اس گاؤں کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے اندر مکتب کا یہ پہلا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ جلسہ تعلیم کے اوپر رکھا گیا ہے اور تعلیم بھی دینی تعلیم ہے، کوئی دنیا کی تعلیم کے لیے نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں جن علاقوں کے اندر مکاتب کا نظام ہوتا ہے، مدارس کا نظام ہوتا ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کے بسنے والے، ان کی نسلیں، آنے والی ان کی اولادیں دیندار ہوتی ہیں۔ جن علاقوں کے اندر، جن بستیوں میں مکاتب کا، مدارس کا کوئی نظام نہیں ہوتا، تو سمجھ لو ان نسلوں کا کوئی آنے والا مستقبل محفوظ نہیں ہوتا۔ محفوظ وہی نسلیں، وہی قوم ہوتی ہے جن کے اندر شروع سے دین کا شعور ہوتا ہے، شروع سے جن کے اندر دین کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، شروع سے جن کے اندر، ان کی نسلوں کے اندر دین کی تعلیم کا آغاز کر دیا جاتا ہے، وہی نسلیں آگے جا کے اسلام پر باقی رہتی ہے، اسلام پر جیتی ہے اور اسلام پر مرتی ہے۔ میں نے اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھا ہوا انسان اور جاہل انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں، اپنے محاورے میں، کہ جاہل آدمی اور پڑھا لکھا آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل کو الگ رکھا ہے اور پڑھے لکھے علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ صف میں رکھا ہے۔ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے، جس قوم کے پاس دینداری ہوتی ہے، جس قوم کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ قوم الگ نظر آتی ہے، وہ قوم الگ چمکتی ہے، چاہے وہ قوم مرد ہو، چاہے وہ قوم ہماری معصوم ہماری مائیں بہنیں ہو یا ہماری یہ معصوم پردہ نشین بہنیں ہو، یہ قوم الگ نظر آئے گی اگر علم ہوگا، اور اگر جہالت ہوگی تو ان کی جہالت الگ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت الگ رکھی ہے اور دین اور علم الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھا لکھا آدمی اور جاہل آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان مبارک کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دنیا کے پڑھنے والوں کو نہیں کہا، کالج کے پڑھنے والوں کو نہیں کہا، انجینئر کے پڑھنے والوں کو نہیں کہا، ڈاکٹر کے پڑھنے والوں کو نہیں کہا، دنیا کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں کہ تم نے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جو ہم اور آپ آج یہاں کر رہے ہیں۔ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو، میرے بھائی علم ہوتا ہے، لیکن جو دنیا کا علم ہے وہ ایک معلومات ہے، وہ ایک تحقیق ہے۔ آج یہ علم ہے، کل اس کی تحقیق ہوگی، سائنس بدل جائے گی، تعلیم بدل جائے گی، دوسری کتابیں آ جائیں گی، تبدیلیاں ہو جائیں گی دنیا کی تعلیم کے اندر، لیکن دینی تعلیم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو قرآن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہی قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا اور وہی قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، وہی ہمیں آپ کو دیا گیا ہے۔ آج دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہونا چاہیے، قرآن میں بدلنا چاہیے۔ میرے بھائی وہ سوچ لیں کر وہ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نازل کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے، پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتا دیا کہ انسان کو دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے شادی کرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے اور
मानना है कि अल्लाह ताला ने अपने सलाम में बता दिया कि इंसान को दुनिया के अंदर किस तरह जीना है। आपने दुनिया की नस्लों को देखा होगा, दुनिया की कौमों को देखा होगा, उनके पास जीने के लिए कोई कानून, कोई दस्तूर नहीं, कोई उनके पास वो नहीं है इस्लामी, कोई उनके पास उनके मजहब की कोई किताब नहीं है। जिस तरह चाहते हैं शादी करते हैं, जिस तरह चाहते हैं जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुसलमानों को एक दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए किताब दी है। और वो किताब आप सब जानते हैं कौन सी किताब है? वो कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने हमें आपको कुरान पाक दिया है। ये कुरान पाक अल्लाह की किताब जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए पूरा एक दस्तूर, एक कानून दिया है। पूरा एक एक चीज का अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि इंसान अगर पैदा होगा तो क्या होगा, इंसान दुनिया से जाएगा तो क्या होगा, पैदाइश और हयात के बीच में इंसान जब रहेगा तो वो किस तरह जिंदगी गुजारेगा। ये अल्लाह ताला ने एक एक चीज को हमें आपको बता दिया। कोई दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता कि साहब हमें खेती का तरीका नहीं बताया, हमें तिजारत का तरीका नहीं बताया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें इस्लाम के अंदर शादी का तरीका नहीं बताया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम मर जाएंगे तो हमें कैसे दफनाया जाएगा। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बच्चा पैदा होगा तो क्या किया जाएगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की जिंदगी गुजारने के लिए दस्तूर और कानून दिया। आज मुसलमान कुरान को पढ़ता नहीं, अल्लाह के रसूल की शरीयत को पढ़ता नहीं, उसे मालूम नहीं। मेरे भाई, उस मालूम के लिए, उस शरीयत को हासिल करने के लिए कुरान को सीखिए। आपका जो मदरसा है, ये मतलब है इसलिए कायम किया गया है ताकि आप लोग इल्म हासिल करें, कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें। कुरान का इल्म जब हासिल हो जाएगा तो फिर आपको जीने का तरीका मालूम हो जाएगा, आपको दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें आपको शरीयत दी। यही शरीयत है जो हम और आप आज अगर सरों पर टोपियां हैं, आज आपके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, आपके लिबास इस्लामी है, आपकी मुसाफा इस्लामी है, ये अल्लाह ताला ने हमें इन मदरसों से दिया है। आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों, हिंदुस्तान के अंदर आपकी 200 साल हुकूमत रही है, 2 साल रही है कि नहीं रही, आप इस बात को खूब जानते हैं। आज दूसरी कौमें ये कहती है कि मुसलमानों का स्कूल में कोई अधिकार नहीं। आज मैं आपको बता दूं मुसलमानों, इस मुल्क में आपका वही अधिकार है जो हमारे हिंदू भाइयों का है, जो सिखों का है, ईसाइयों का है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कुर्बानी इस मुल्क को आजाद कराने में अगर किसी ने दी है तो हम मुसलमानों ने दी। क्यों? कि इस मुसलमानों ने इसलिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि ये मुल्क हमारा, इस मुल्क को, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हमने बनाया था, हमारे बाबा और अजदाद ने बनाया था। ये छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, छोटे छोटे से अपने अपने मुल्क हुआ करते थे, अपने अपने कायदे कानून हुआ करते थे। इस मुल्क को अखंड भारत, इस मुल्क को अगर भारत बनाया है तो हमारे आबा और अजदाद ने बनाया, वरना ये हिंदुस्तान नहीं था। इसकी पहचान दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के तौर पे नहीं थी। इसकी एक छोटी छोटी स्टेटें होती थी, छोटी छोटी हुकूमतें होती थी, अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग कायदे कानून होते थे। इस मुल्क को अगर भारत बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है तो हमारे आबा और अजदाद ने बनाया है। इस मुल्क की दुनिया के अंदर पहचान अगर कराई है तो हमारे आबा और अजदाद ने कराई, क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों का था। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी। तुम्हारी तख्त और ताज थे, तुम्हारी दिल्ली के अंदर सल्तनत थी, तुम्हारी दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद गवाही देती है। आज भी जामा मस्जिद के सामने दिल्ली का लाल किला मुसलमानों आज भी तुम्हारी इस्लामी हुकूमत की गवाही देता है। आगरे का ताजमहल, आगरे का कुतुब मीनार, लाल किले, ये सारी मुसलमानों की वो चीजें हैं जो आज गवाही देती है। तो आज यहाँ के लोग उसको छुपा नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते कि ये हमने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा और अजदाद की निशानियां इस मुल्क को बनाने के लिए बदकिस्मती से इस मुल्क से
की होगी। आज इनकी हुकूमत आए हुए आज ये दुनिया को दिखाने लगे कि इस मुल्क के बादशाह हमें। मेरे भाइयों, ये आज भी जरूर बादशाह है, कल ये बादशाह नहीं होंगे, कल कोई और बादशाह होगा, कल कोई दूसरा हुक्मरान होगा। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, इस मुल्क को बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो जब हमारी हुकूमत इस मुल्क से चली गई, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने कहा कि कोई बात नहीं, हुकूमत चली गई, चली रहने दो, फिर आ जाएगी, फिर हुकूमत आती है, जाती है, बनती है, बनाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने सबसे पहले अंग्रेज के दौर में जो फिक्र की, मेरे भाइयों, काय की फिक्र की, मालूम ही नहीं मालूम आपको क्यों? मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों, हमारे अकाबिर ने हुकूमत की फिक्र नहीं की, तख्तो-ताज की फिक्र नहीं की, सल्तनत की फिक्र नहीं की। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहली फिक्र की कि हमारा इस्लाम, हमारा ईमान, हमारे अकाइद, हमारी शरीयत कैसे बाकी रहे, मुसलमानों के अंदर कैसे इस्लाम बाकी रहे, कैसे ईमान बाकी रहे। उन्होंने इसकी फिक्र की। और उसके लिए आपको ये बता दो, सबसे पहला अंग्रेज के दौर में जो मदरसा कायम हुआ, वो कौन सा मदरसा है? मैं आपकी जबान सुनना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम है या नहीं मालूम। रोजा कायम, कौन सा मदरसा कायम हुआ अंग्रेज के दौर में हुकूमत में? अरे बताइए। दारुल देवबंद कायम हुआ। सबसे पहला मदरसा हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। और होना तो ये चाहिए कि साहब, हमारी हुकूमत थी, हम हुकूमत के लिए दोबारा कोशिश करते, हम दोबारा लड़ते, लेकिन नहीं, उन्होंने इसकी फिक्र की कि हमारा ईमान, हमारा इस्लाम हमारी नस्लों में कैसे बाकी रहे। तो सबसे पहले 1866 के अंदर हमारे अकाबिर ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। फिर वो बुनियाद कायम हुई। उसके बाद हमारे अकाबिर ने उलमा तैयार करना शुरू कर दिए, हुफ़ाज़ तैयार होने लगे, और यहाँ तक के फिर इतने उलमा तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने दारुल देवबंद की बुनियाद की इज्जत पर फिर अल्लाह ताला को कायम किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमात, जिसको तबलीगी जमात के नाम से वो आप जानते हैं, फिर वो जमात बनी। ऐसी अल्लाह ताला ने उसी दारुल देवबंद से 3 जमातों को तैयार किया। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को दारुल देवबंद से पढ़ने निकले और उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से उनका काम लिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से जमीयत उलमा का काम लिया। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने इस जमीयत को कायम किया। आज जमीयत उलमा पूरे मुल्क में कायम है और काम कर रही है, पूरे सूबे में कायम है, पूरे मुल्क में कायम है, जिसके सदर मोहतरम आप सब जानते हैं हज़रत मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया है। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने, जिनके वालिद ने 3 साल माल्टा की जेल काटी, अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल की कैद को बर्दाश्त किया कि आपकी वही आपके वालिद हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हज़रत मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब है। ये 3 जमातें अल्लाह ताला ने अंग्रेज के दौर में कायम की। एक जमात ने अंग्रेज से जिहाद किया, दूसरी जमात तबलीग ने इस्लाम समाज के लिए काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा आजाद हुआ। और उसके बाद आप सब जानते हैं 1947 हुआ, पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद 71 में बांग्लादेश बना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये मुल्क के अंदर मुसलमानों आपकी 200 साल हुकूमत रही। आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको फिक्र की जरूरत है कि हमारी नस्लें, हमारी औलादें, हमारे बच्चे इस्लाम पर कैसे बाकी रहे, ईमान पर कैसे बाकी रहे। ये मदारिस इसीलिए कायम किए जा रहे हैं। हज़रत मौलाना फारूक साहब ने जो 1 साल की थोड़ी सी करीब मुद्दत के अंदर उन्होंने इतनी मेहनत की, इस इलाके में इंकलाब बर्पा कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियां देख के खुशी होती है कि ये मासूम बच्चियां हालांकि बुलूग को नहीं पहुंची, उसके बावजूद ये पर्दे की हालत में है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने मौलाना फारूक साहब के जरिए से वो दीन का काम लिया, वो दीन की खिदमत ली, उनकी अहलिया से उन्होंने इस इलाके के अंदर समझ लो इंकलाब बर्पा कर दिया। मैं यही कहता हूँ, जितने हमारे अकाबिर उलमा बैठे जो मदारिस को चलाते हैं, मकातिब को चलाते हैं, आप भी ऐसे मिसाली मकातिब बनाइए, ऐसे मदरसे कायम करिए, जिस इलाके में भी हो उन इलाके के अंदर इंकलाब बर्पा कर दे। और मालूम हो कि मुसलमानों हम जिंदा होंगे, हम इस्लाम पर जिएंगे, पर्दे के अंदर रहकर हमारी बहनें पर्दे के अंदर जिंदगी गुजारेगी, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां टोपी सर पे
बच्चों की फिक्र नहीं की तो समझ लो हिंदुस्तान भी उर्दू बन जाएगा, स्पेन बन जाएगा, समझ लो बसारा की तरह बन जाएगा। मेरे भाई ये उस मुल्क की तारीख। इसलिए बिरादरान इस्लाम, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे दीनदार रहे, आपकी नस्लें दीनदार बाकी रहे, आपकी आने वाली औलादें इस्लाम पर बाकी रहे, तो सब हाथ उठा के कहो कि हम अपने बच्चों को मदारिस और अकादमी में पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह, ये हुई बात। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची ऐसा ना हो कि मदरसे में ना पढ़े। मैं ये कहता हूँ अपने बयानों के अंदर, मुसलमानों सबसे पहले आपका बच्चा मदरसे के अंदर जाए, मकातिब के अंदर जाए। जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाए तो आप अपने बच्चों को मौलवी साहब के पास ले जाओ और बिस्मिल्लाह शुरू कराओ। और मेरे भाइयों ने इस पर भी बात तवील हो जाएगी। मेरे वालिद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह किस्सा सुनाया करते थे बिस्मिल्लाह के ऊपर। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ थी, उसके वालिद का बच्चे का इंतकाल हो गया। माँ ने दीनदार थी, माँ ने सोचा चलो मौलवी साहब के पास बच्चे को ले जाएं और उसकी बिस्मिल्लाह शुरू करा दें और वहाँ उसको पढ़वाएं। वो बेचारी माँ मासूम यतीम बच्चे को ले जाके मौलवी साहब के पास जाती है और मौलवी साहब से कहती है कि मौलवी साहब इस बच्चे की बिस्मिल्लाह शुरू करा दो। जब वहाँ पर मौलवी साहब के पास बच्चे की बिस्मिल्लाह होती है और उसका वालिद का इंतकाल हो जाता है, उसके वालिद का अज़ान क़ब्र हो रहा होता है, तब वो बच्चा बिस्मिल्लाह करता है। मौलवी साहब कहते हैं बच्चे से कि बड़ा बच्चा, तो बच्चा पढ़ता है। बच्चा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला जब उस बच्चे की ज़बान मुबारक से ये निकालते हैं, इधर उस बच्चे के बाप को अज़ान क़ब्र हो रहा है, जब बच्चे तो जब बिस्मिल्लाह शुरू कराई और वो बच्चा कह रहा है ये रहमान और रहीम है, जो रहम करने वाला है, तो मेरे भाई अल्लाह ताला को शर्म आ गई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ फरिश्तों, बच्चे के बाप के खौफ के अंदर जो आजाद हो रहा है उस आजाद को रुकवाओ। और ये बच्चा मुझसे कह रहा है कि आप रहमान और रहीम है, वो मुझसे दरख्वास्त कर रहा है, भीख मांग रहा है। सोचो उस बिस्मिल्लाह से, उस बच्चे की शुरुआत से अल्लाह ताला ने बाप के आजाद को रोक दिया। आप सोचिए जब आप अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, शुरू बिस्मिल्लाह से अल्लाह ने आजाद को टाल दिया। जो आजाद घरों के अंदर हो रहा था, तब आप अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, कि हमारी बच्चियां दीनदार बनेगी, कि हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे, तो गुलाम के अल्लाह ताला को आया नहीं आएगी कि मैं अपने इसके बाप को राहत दे दूं। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों को दीनदार बना दिया, और हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, उसका बाप चला जाए और उसकी औलादें अगर नेक हो, उसके लिए दुआएं करती है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, तो नेक बच्चे होते हैं। इसलिए मुसलमानों, आप अपने बच्चों को दीनदार बना, आप अपने बच्चों को मदारिस में भेजो, आप अपने बच्चों को मकातिब में पढ़ाने के लिए भेजो। अगर आपने अपने बच्चों को भेज दिया और आपकी नस्लें, आपकी औलादें मकातिब में जाके दीन हासिल करेगी, मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ आप स्कूल पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले उनकी शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? बिस्मिल्लाह से होना चाहिए, कुरान की तालीम से होना चाहिए, ना कि स्कूल की तालीम से। जब आपके बच्चे दीनी तालीम हासिल कर ले, 10 साल के 12 साल के हो जाए, फिर उसके बाद आप स्कूल पढ़ाइए, आलिम पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कोई पढ़ाई करता, लेकिन आपकी नस्लों के अंदर, आपकी औलादों के अंदर अगर बुनियाद से आपने इस्लाम की बुनियाद रख दी होगी, आपने दीन की बुनियाद रख दी होगी, अपने बच्चों के अंदर कुरान की इब्तिदा कर दी होगी, तो जो जब मकान बनता है, मकान की बुनियाद अगर मजबूत होती है, तो घर मजबूत होता है कि नहीं होता? इसी तरह आपके बच्चों की बुनियाद आपने इस्लाम पर रख दी होगी, दीन पर रख दी होगी, तो समझ लो आपके बच्चे आगे जाके दीनदार बनेंगे। मुझे एक वाक़या याद आया, अभी चंद साल पहले एक लड़की कॉलेज जा रही थी, तो दीनदार घराने से थी, उसको पचहत्तर वाले से लोगों ने रोका। उस दीनदार लड़की ने उसमें आया लड़की के अंदर ईमान की गैरत थी। उस 40-50 लड़की ने उन बजरंगियों का, उन आरएसएस के लोगों का मुकाबला किया और वो डट गई और उनको पीछे हटना पड़ा। मुसलमानों, अगर हमारी बच्चियों में वही ईमान, वही गैरत होगा, हमारी बच्चियां जब तालीम में जाएंगी तो पर्दे की हालत में जाएंगी। अभी मैं देख रहा था कि 12वीं का इम्तिहान हो रहा था, एक बच्ची को कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया, इसलिए बुरखे के अंदर आ
نہیں کی. اس بچی نے کہا مجھے اگر تم عرصے کے اندر جانے دو گے تو میں امتحان دوں گی, اور اگر تم عرصے کے اندر جانے نہیں دو گے تو میں ایسے آدمی پر لعنت کرتی ہوں, میں ایسے تعلیم پر لعنت کرتی ہوں جس سے میرے رسول اللہ کا طریقہ ٹوٹے, نبی پاک کا طریقہ ٹوٹے, اللہ کا حکم ٹوٹے. اس نے منع کر دیا کہ میں امتحان نہیں دوں گی. پھر آخرکار اسکول کے لوگوں نے مجبور ہو کر کہا کہ آ جاؤ. میرے بھائی جب ایمان پر کوئی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر روک پیدا کر دیتا ہے, ان کے قلوبوں کو نرم کر دیتا ہے. ہم لڑکی کو دکھائیں, ہم اسلام پر جم کے تو دکھائیں, ہم اسلام پر اڑ کے تو دکھائیں. آج ہم اسلام سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھو میری مائیں, یاد رکھو میری بہنیں, یاد رکھے میرے معصوم طلبا, اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام جو آیا ہے 1400 سال پہلے تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے آیا ہے, یہ کمپرومائز کے لیے نہیں آیا. میں یوسی کی میٹنگ میں گیا, میں نے وہاں بھی ایک بات کہی کہ صاحب ہم آپ کے ہر قانون کو ماننے کو تیار ہے, ہم آپ کے ہر رولز کو ماننے کو تیار ہے, اسلام کے اوپر ہم اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں. اسلام سے ہم کمپرومائز نہیں کریں. یہ میرے ساتھ تھا, آپ کہیے تو آپ کہیے, ہم کھڑا دیں گے. ارے بھائی اگر یہ جان چاہتی ہے تو چلی گا اسلام کے لیے, اگر اسلام کے لیے بدل جاتا ہے تو چلا جائے. میرے بھائی صحابہ اکرام ایماندار تھے, اللہ کے رسول کا ایمان ہوتا اور وہ نکل جاتے اللہ کے راستے میں. اور میرے بھائی خبر آتی کہ وہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول کہتے کہ ابھی رات کو اسلام لائے تھے, رات کو ایمان لائے تھے, اور ابھی اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے, ان کو فرشتے موصول دے رہے ہیں, ان کو فرشتے دے رہے ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام کے لیے جنت دیتا ہے. آپ بھی اسلام بھٹک کے, آپ بھی اسلام پر آ کے دکھائیے, آپ بھی اسلام پر جیتے کریں گے تو اسلام پر ہماری پہچان ہوگی, تو اسلام پر ہوگی, ہمارے سر پر ٹوپیاں ہوں گی, ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں گی, ہماری مذہب اسلامی ہوگی. میرے بھائیوں میں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا معصوم مولانا آصف صاحب دعوت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں, کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا. میں زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتا ہوں, اپنی بات کو ختم کروں گا, لیکن میں آپ سے